Hello students, this is Sanskaram group of schools and it's my great pleasure to welcome you all on our official YouTube channel. Students, this is second class. Subject is English. Chapter number 6, name of the chapter is the mitten. And today we are going to read and we will also discuss some question and their answers. The mitten. Students, we have already read this story. In the previous lecture, in the previous class, we have discussed the story in detail. So today we are going just to read it. Okay? This is story. Once upon a time, there was a little boy named Nicky. He asked his grandmother to make him a pair of mittens to keep his hands warm in the snow. Okay, I will make you red mittens, said his grandma. But grandma, I want white mittens. No, no, no. If you drop a white mitten in the snow, you will never find it, said grandma. But grandma, I want white mittens, please, requested Nicky. So Nicky's grandmother made white mittens for him. Which color of mittens? Yes, white mittens. Nicky put on the mittens and went outside to play in the snow. As he played, Nicky lost one of his mittens. A mole found the mitten, as the mitten looked quite warm and comfortable. The mole crawled into it. The mole was about to go to sleep. Just then a rabbit came by and crawled into the mitten. A fox was passing by and saw the mitten. Can I come in? Asked the fox. First one was mole, second one rabbit, then fox. The mole and the rabbit almost said no, but it was cold and you are always supposed to share. So they said, okay, you can come in if you can fit. Soon other animals crawled inside the mitten to stay warm. First there was hedgehog, then owl, then a bear and finally a mouse. The mouse turned around and tickled the bear's nose. Bear's nose. Suddenly, the bear sneezed. Achoo! The animals said all flew out of the mitten. The animals all flew out of the mitten. The mitten went flying in the air and fell near Nicky's house. Nicky saw his mitten. He was glad to have it back. The bear landed in a cave and went to sleep. The fox landed in a hole of the bottom of a tree and went to sleep. The rabbit landed on some grass and went to sleep. The mole landed in his burrow and went to sleep. And the mouse? What about mouse? The mouse is still looking for a home. He might try to get into yours. It was a story about some animals and a boy named Nicky. एक निकी नाम बच्चे की स्टोरी थी जो अपनी दादी को कहता है कि हाँ स्नोफॉल होना शुरू हो गया है, अब मेरे लिए मिटन्स बना दो. मिटन मीन्स वन टाइप ऑफ ग्लव्स. एक तरीके के ग्लव्स होते हैं बेटा जिसमें 4 फिंगर कवर रहती हैं और थंब आपका बाहर रहता है. बाहर मीन्स उसके लिए अलग स्पेस होता है. बच्चा कहता है कि दादी को ग्लव्स बना दे. दादी कहती है रेड कलर के ग्लव्स बना देती हूँ, लेकिन बच्चा कहता है नहीं मुझे तो वाइट चाहिए. बच्चा रिक्वेस्ट करता है और दादी उसके लिए वाइट कलर के मिटन्स बना देती हैं. बच्चा पहन के बाहर जाता है खेलने के लिए और जैसा दादी ने कहा होता है वो अपना ग्लव्स बर्फ़ में खो देता है. ग्लव्स गुम हो जाते हैं और वो ग्लव्स मिलता है किसे? एक मोल को. मोल वन टाइप ऑफ एनिमल, एक तरीके का एनिमल होता है छोटा सा लाइक माउस.
जो ज़मीन खोदता है और ज़मीन के अंदर रहता है, उसे वो बहुत कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है और वो उसके अंदर घुस जाता है, अपना घर समझ लेता है उसे। उसके बाद धीरे धीरे बाकी एनिमल्स, रैबिट, फॉक्स, हैजबर्ग, आउल, मीन सारे एनिमल्स आते रहते हैं और वो किसी को मना भी नहीं करते, बिकॉज द रूल ऑफ द फ्रेंडशिप इज़ वी हैव टू शेयर। ठीक है, सब आ जाते हैं और लास्ट में एक माउस भी आ जाता है। माउस अपनी आदत से मजबूर है, वो उसमें घूमना शुरू कर देता है और उसके घूमने की वजह से माउस जो होता है बियर की नोज़ के पास पहुंच जाता है। बियर की नोज़ में टिकलिंग होती है, गुदगुदाहट होती है और उसे छींक आ जाती है। जैसे छींक आती है, मिटन हवा में उड़ जाता है और मिटन के साथ सारे एनिमल्स भी उड़ जाते हैं। सब मिटन अपने घर पहुंच जाता है और बाकी सारे एनिमल्स भी अपने अपने घर में पहुंच जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। बचता है सिर्फ एक एनिमल, कौन? माउस। माउस अभी भी क्या कर रहा है, उसके पास घर नहीं है, वो घर ढूंढ रहा है और लास्ट में ये कहा गया है कि ध्यान रखना कहीं वो अपना घर आपके घर में ना बना ले। That's it. Now we are going to discuss some question and their answers also. Question number 1, what was the boy's name? लड़के का नाम क्या था? What did he ask his grandma for? वो अपनी दादी को क्या कह रहा था, क्या बनाने के लिए वो कह रहा था? The boy's name was Nicky. क्या नाम था बच्चे का? Nicky. He asked grandma to make a pair of mittens. उसने दादी को क्या कहा कि वो उसके लिए ग्लव्स का एक पेयर बना दे, मिटन का एक पेयर बना दे। आई एम अगेन गोइंग टू रिपीट, व्हाट वाज द नेम ऑफ बॉयज, व्हाट वाज द बॉयज नेम, व्हाट डिड ही आस्क हिज ग्रैंडमा फॉर? आंसर इज द बॉयज नेम वाज निकी. ही आस्क्ड ग्रैंडमा टू मेक अ पेयर ऑफ मिटन्स. गॉट इट? बेटा इफ यू हैव रेड द स्टोरी डीपली, अगर आपने स्टोरी अच्छे से सुनी है, यू कैन आंसर योर सेल्फ, आप अपने आप आंसर कर सकते हो, इट्स वेरी मच ईजी. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड हिज ग्रैंडमा वांट हिम टू हैव रेड मिटन्स? दादी क्यों चाहती थी कि वो रेड कलर के मिटन बनाएं? आंसर इज ग्रैंडमा वांटेड टू हैव रेड मिटन्स बिकॉज दिस कलर इज इजीली विजिबल इन द स्नो. दादी चाहती थी कि वे रेड कलर के मिटन्स बनाएं, क्योंकि रेड कलर ऐसा है, स्नो जो होगी वो वाइट कलर की होगी, अगर कहीं रेड कलर का मिटन खो भी जाएगा तो वो दूर से दिख जाएगा, इजीली विजिबल है वो रेड कलर. स्नो वाइट कलर की होती है इस वजह से. क्वेश्चन, वाई डिड हिज ग्रैंडमा वांट हिम टू हैव रेड मिटन्स? आंसर वी विल राइट, Grandma wanted to have red mittens because this color is easily visible. Visible means दिखाई देता है in the snow, क्योंकि red color snow में, white snow में दूर से दिखाई देता है. That's it. Question number 3, what was the color of mittens his grandma made for him? दादी चाहती थी कि वो रेड मिटन बनाए, लेकिन फाइनली उन्होंने कौन से कलर के मिटन बनाए? व्हाट वाज द कलर ऑफ मिटन्स? जो मिटन्स थे उनका क्या रंग था? हिज ग्रैंडमा मेड फॉर हिम, जो दादी ने बनाए निकी के लिए. निकी के लिए दादी ने फाइनली कौन से कलर के मिटन्स बनाए? आंसर इज हिज ग्रैंडमा हैड मेड वाइट कलर्ड मिटन. वाइट कलर के, जैसे निकी ने रिक्वेस्ट करी थी, दादी ने एज पर रिक्वेस्ट वाइट कलर के ही मिटन्स बना दिए थे. What was the color of mittens his grandma made for him? Answer we will write, his grandma had made white colored mittens. Got it? Question number 4, how many animals went into the mitten? Name them. कितने जानवर चले गए थे मिटन के अंदर? सबसे पहले मोल गया था, मोल के बाद रैबिट, रैबिट के बाद फॉक्स, और कितने एनिमल्स सारे के सारे चले गए थे. साथ में उनके नेम देम, नाम भी लिखने हैं. आंसर में लिखेंगे 7 एनिमल्स. 7 एनिमल थे जो एक मिटन के अंदर चले गए थे. वर देयर इन द मिटन. नेम मोल, रैबिट, फॉक्स, hedgehog, owl, bear and
mouse. 7 animals were there in the mitten. Mitten में 7 जानवर चले गए थे. Mole, rabbit, fox, hedgehog, owl, bear and mouse. Got it? Question number 5. What happened when the bear sneezed? जब भालू को बियर को छींक आ गई तो क्या हुआ था? सब अपने अपने घर पहुंच गए थे. कैसे? When the bear had sneezed, जैसे ही भालू ने छींका, all the animals flew out of the mitten. सारे के सारे जानवर और मिटन हवा में उछल गए थे. मिटन उछल के हवा में चला गया और सारे के सारे जानवर जो थे वो बाहर निकल पड़े, मिटन से बाहर निकल गए और जा कर के अपने अपने घर में पहुंच गए. आंसर में हम लिखेंगे when the bear had sneezed. जैसे ही बियर ने छींका, भालू ने छींका, all the animals flew out of the mitten. सारे जानवर मिटन से बाहर निकल गए और हवा में उड़ गए. What happened when the bear sneezed? Answer is when the bear had sneezed, all the animals flew out of the mitten. Students, we have done the story and today we have also discussed the question and answer. If you have any doubt, you can contact us. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you students. Have a good day.